Hello everyone. From this video, we are going to start a subject microwave engineering. The topics are covered are as per the syllabus of Dr. AKTU University Lucknow. However, you can find almost all the topics because all the syllabus are more or less same. I have named this lecture as lecture 0. Even I can named it lecture 1 from unit 1 because it is only cover the basics of microwaves. The word micro here, about the introduction of electromagnetic spectrum, about the wavelength and frequencies, properties of microwaves, microwave devices, components and systems. So before we start, I want to tell you one thing that all of my videos are bilingual, that is in Hindi as well plus in English. So because most of my audience are very much comfortable in this language. However, I will remake these lecture only in English after some time. So let us start about the microwave engineering. So move on to introduction about the microwaves. Micro here indicates the wavelengths in micron ranges. Micron means the micrometer part. But if we say that according to the book, and as usual, they are from the wavelengths are belongs from 30 centimeter to 1 mm. Micrometer is not here. And frequency from 1 to 300 gigahertz, and they lie from infrared to the visible light regions. So let us talk about these 3 points and about the micro things. So I have made a little bit from sketch pens here. You can see that we have the relation between the frequency and wavelength, that they are inversely proportional. The relation is nu equals to hc by lambda. So in MKS system, this wavelength is in meters, as we all know about this. So if talk about the microwave now, so lambda in micrometer, that means 1 upon micrometer, which will be the frequency. So 1 upon 10 raised to the power minus 6 meter, obviously, and we can say 10 raised to the power 6 meter inverse. Okay, so it will be minus 1 here. So frequency will come out to be 10 raised to the power 6 here is in megahertz. And if we consider the case of centimeter, so 1 upon centimeter is 1 upon 10 raised to the power minus 3, and at last we can see that frequency is in kilohertz. So as so on, we can do this kind of thing in millimeter also. So the frequency, if we consider in micrometer, that wavelength in micrometer, so the frequency will be in megahertz. So gigahertz is not there. It is only the way of representing the numbers. You can see that kilohertz, 3 decimal places, 0.000, or we can say 0.001 megahertz here, and if megahertz is converted to gigahertz, it is 0.001 gigahertz. We are taking standard units, standard things like 1 here only. तो ये केवल एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हमारा जो है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज हम किस रेंज में दिखाते हैं. अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ हमारी किस साइज की होती है. साइज रेडियो से लेकर वाई तक, और हम जानते हैं वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, वेवलेंथ कम रहेगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सारी चीज़ें बता रही है कि यहाँ पर किस साइज की वेवलेंथ हमें मिलती हैं. तो इस रीजन के अंदर जो हमारा माइक्रोवेव है, वहाँ पर हमारी जो है एक इंसान की हाइट के बराबर, मतलब इन मीटर स्केन से हमारी वेवलेंथ हो सकती है, एंड अप टिल द, हमने कहा था विजिबल तक, अप टिल अ बैक्टीरिया. सो यहाँ से यहाँ तक हमारा स्पेक्ट्रम हो सकता है माइक्रोवेव का. हाउएवर यहाँ पर केवल माइक्रोवेव का इतना ही पार्ट दिखाया है, मगर हम यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हैं एज फार एज द IEEE standards are concerned. So in case of frequency, you can also see that the electromagnetic spectrum here.
the radio to the gamma ray 10 raised to the power 3, and here is 10 raised to the power minus 12. It is about the wavelengths, and here is the inversely proportional thing, that is the frequency, and this diagram is also clearing the things. So let's move on. So let's have the first slides again. So we can say that it indicates the wavelength in micron ranges, but roughly it is in between 30 centimeter to 1 mm, frequency from 1 to 300 gigahertz up to infrared and visible light region they fall into. तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को लेकर कुछ IEEE recommendations के बारे में बात करते हैं. So IEEE recommended these bands for the microwave signals. They lie in between 3 megahertz to 300 gigahertz. तो ध्यान रहे कि हम जब भी माइक्रोवेव सिग्नल की बात करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, अगर आपके पास MCQs में आता है तो हम यही बताएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड IEEE ने दिया हुआ है, इसी की ही हम बात करेंगे. तो 3 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी HF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF, KA, MM और सब MM रेंजेस की होती हैं, जिसकी टेबल मैं आपको इस स्लाइड्स में दिखाता हूँ. इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी की किस रेंज से किस रेंज तक फ्रीक्वेंसी होती है, अप टिल द सब मिलीमीटर. तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि कहाँ से कहाँ तक ये बैंड हमारे होते हैं. अक्सर ये क्वेश्चन MCQs में पूछा जाता है. सो HF, VHF, UHF, LSC, XKU, KA, MM, और ये याद रखना बहुत ही आसान होता है. सो ये आप याद रखें. ध्यान रखें एक चीज़ जो मैंने बताया, 3 megahertz to 300 gigahertz, you have to keep it this in mind. So if we talk about the microwave frequency, it lies in between 3 megahertz to 3 gigahertz. So let us talk about the microwave devices. So for the generation of these microwave signals, earlier in 1930, there are vacuum tubes. But if we talk about the wavelength of microwave signals, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो वेवलेंथ है वो जो हमारे वैक्यूम ट्यूब होती थी उस साइज के बराबर ही हो जाती थी या उससे ज़्यादा भी हो जाती थी, जिस वजह से हमारे एक लिमिटेशन हो जाती थी कि भाई वो वैक्यूम ट्यूब का जितना साइज होगा उससे ज़्यादा हमारी वेवलेंथ नहीं हो सकती थी. तो ये कुछ लिमिट कर देता था कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ तक, कि इससे ऊपर की वेवलेंथ हम नहीं बना सकते. तो आफ्टर 1935 बहुत सारे अलग डिवाइसेस और भी बनाए गए. कुछ ट्रांजिट टाइम इफेक्ट के बारे में, ये ट्रांजिट टाइम इफेक्ट हम आगे अपने यूनिट्स में पढ़ेंगे. वेलोसिटी मॉड्यूलेशन भी हम पढ़ेंगे. सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी हम सारा यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे के चैप्टर्स में. तो यूजिंग ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस वी हैव फॉर्म्ड लम्प ट्यून सर्किट्स. Using velocity modulation techniques, the scientists have made microwave tubes. There are klystron, helix traveling wave tube, that is TWT, and magnetron was there, reflex klystron was there. And using semiconductor, there are several devices, namely tunnel diode, gun diode, impact diode, Barrett diode. So these are all diodes which are used to generate microwave signals from the past 1935. So we talk about in later units of this topic. So let us talk about the advantages of microwave signals. Obviously, the frequencies is very high, therefore the bandwidth availability is increased. It is from 1 to 103 gigahertz. The bandwidth is 1 to 103 gigahertz. इसकी डायरेक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो भी अच्छी हो जाती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है. और हम बात करें अगर बीम विड्थ की, जो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय डी और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इनके अगर रिलेशन को हम सॉल्व करें तो हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा थीटा है वो बहुत कम हो जाता है. थीटा कम होने की वजह से हमारा डायरेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है. डायरेक्टिविटी क्या होती है कि जो हमारा सोर्स से निकलता है सिग्नल, उस सोर्स में एनलार्जमेंट नहीं होता, वो एक स्ट्रेट लाइन में को फॉलो करता है. तो ये इम्प्रूव फॉर्म में होती है माइक्रोवेव सिग्नल के अंदर. अब हमारे फीडिंग इफेक्ट इस वजह से, क्योंकि हमारी डायरेक्टिविटी अच्छी है
तो हमारी लाइन ऑफ साइट भी अच्छी हो जाएगी हाई फ्रीक्वेंसी पर। इस वजह से हमारा सिग्नल फेड नहीं होगा, फेडिंग इफेक्ट नहीं होंगे और सिग्नल हमारा रिलायबल होगा। और इसके साथ साथ थोड़े से और दैट जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की पावर रिक्वायरमेंट्स है उसको भी ये कम कर देता है। और साथ ही साथ हमारा ये एटमॉस्फेयर में भी इजीली ट्रेवल करता है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से आयोनाइज लेयर से इजीली चला जाता है, जिस वजह से हम इसको रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के अंदर यूज करते हैं माइक्रोवेव सिग्नल्स के अंदर। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, जो हमने लास्ट पॉइंट में बात करी। अगर हम कहें टेलीकम्युनिकेशन में, सबसे पहले टेलीफोन, टीवी, स्पेस कम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ों में माइक्रोवेव का इस्तेमाल हुआ। इन केस ऑफ रडार्स वी कैन से दैट ATC, defense purpose, and the weather forecasting, these kind of examples are there where the applicability of microwaves can be seen. ATC here is automatic traffic, air traffic controller, not automatic, it is air traffic controlling because of radar section here. So another thing is the commercial and industrial application. Do we have the microwave in our home also? This is the commercial use of this these microwave signals, the microwaves which are used for food processing in our homes, the drying machines in the chemical industries, for mining and biomedical applications it can be used. और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ नॉन कॉन्टेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट की, बिना किसी को टच करे हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफिकेशन कर सके, इस टाइप के सेंसर्स को हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी बोलते हैं। तो उस केस में भी इसका हमने एप्लीकेशन देखी है और हमने उसको यूज़ किया है। और बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेस के रूप में भी हमने यूज़ किया है माइक्रोवेव सिग्नल्स को। सो अगर उसकी एडवांटेजेस हैं तो साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, बिकॉज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद क्लियर लाइन ऑफ साइट, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी डायरेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, थीटा बहुत कम हो गया था। तो ये सारी चीज़ की वजह से क्या है कि रिसीवर और ट्रांसमीटर बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, तो तभी आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। अगर वो इधर उधर होंगे तो हम सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएंगे जो हमारे ट्रांसमीटर से हमें मिला है। जिस तरीके से हम आजकल मोबाइल में देखते हैं कि हम कहीं भी हों हमारा सिग्नल हमें रिसीव हो जाएगा, बट ऐसा माइक्रोवेव के केस में नहीं होता, वो आमने सामने होने ज़रूरी हैं। इसके बाद सिग्नल एब्जॉर्प्शन, हमारा एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती है जिसकी वजह से हमारा सिग्नल एब्जॉर्ब हो जाता है। वेदर ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, ऑब्वियसली द हाई इक्विपमेंट कॉस्ट, कॉस्टली मेजरमेंट करने के तरीके इसके बहुत कॉस्टली होते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, माइक्रोवेव की वजह से ब्रेन मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंजेस होते हैं, जो एक डिजीज़ अल्जीमर इसको बोलते हैं। इस डिजीज़ इस माइक्रोवेव की ज़्यादा, जो लोग माइक्रोवेव्स के अंदर माइक्रोवेव्स जहाँ पर होती हैं वहाँ पर रहते हैं, तो उनको ये डिजीज़ होने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ये डिजीज़ क्या है आप गूगल करके देख सकते हैं। तो बात करते हैं माइक्रोवेव सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है जो आपने अपनी लैब में देखा होगा ज़रूर फ्रेंड्स। और हम बात करते हैं, तो माइक्रोवेव सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ two subsystem, the transmitter subsystem and a receiver subsystem. Transmitter has a source obviously, a wave meter, a calibrated attenuator. उसी के साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ बात करें रिसीवर सेक्शन पर, तो रिसीवर एंटीना वहाँ पर होगा, जैसे यहाँ ट्रांसमीटर पर एंटीना था, और उसके साथ वहाँ ऑसिलोस्कोप जो उसकी VSWR या कह सकते हैं पावर मेजरमेंट के काम आता है। और वेवगाइड जहाँ टर्मिनेट होगी वहाँ लास्ट में हम उसको लगा देंगे। एक क्रिस्टल माउंट दिया है जहाँ से हम हमारी जो कैविटीज़ हैं वो उस एनर्जी की पावर को मेजरमेंट करने के काम आता है। ये कैसे है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अपने यूनिट्स में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये हमारा जो जहाँ पर माइक्रोवेव ट्रेवल कर रही है इसे हम कहते हैं वेवगाइड। तो बात करें अगर माइक्रोवेव कंपोनेंट की, इसी सिस्टम को देखते हुए, तो कुछ हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स की बात आती है। वेवगाइड्स, रेजोनेटर्स, कैविटीज, ट्यूब्स, दैट इज क्लेस्ट्रॉन एंड काइंड ऑफ थिंग्स, microwave strip lines, hybrids, microwave integrated circuits. So these are all the top components which are utilized to form an integrated circuit for microwave signals.
सो हम यहाँ रोक नहीं रहे हैं, ये तो केवल हमारा एक बेसिक लेक्चर था और यही सारी चीज़ें हम सारे यूनिट्स में अपने पढ़ते जाएंगे, यही वो सारे कंपोनेंट्स हैं, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में, सो दैट आप अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इजीली पता लगा पाएँ कि किस यूनिट के लेक्चर में आपका टॉपिक आपको मिलेगा। आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ईज़ के लिए आपको इस अकेले मेरी वीडियो से पता लग जाएगा। सो इन यूनिट 1 वी टॉक अबाउट द माइक्रोवेव प्रोपगेशन। ऑब्वियसली द कंपोनेंट वी हैव talked about as microwave guides, microwave strip line transmission and cavities. These kind of things we will study in unit 1. And in unit 2 we'll going to discuss about the junction hybrid circuit integrating. These kind of these things we'll discuss in our unit 2, microwave devices junctions. So in unit 3 we'll be discussing microwave tubes, the klystron, reflex klystron, magnetron, TWT, BWO. So these klystron microwave tubes we will be discussing in unit 3 lectures. And so there is no unit 3, unit 4 and unit 5 is not there. I think there is some problem with it. So I'll tell you guys, in unit 4 we talk about the semiconductor devices like the tunnel diode, impaired diode, Barrett diode. We'll discussing about this thing in unit 3, unit 4, and unit 5 we'll talk about the microwave measurements. That is, the how will we calculate the microwave power, microwave frequencies, wavelengths. For example, the wave analyzer, the spectrum analyzer, the Q meter. So these kind of measurement techniques we'll be discussing in our unit 5. So it is a kind of mistake by my side that the slide is missing here. So I have explained in that what we'll be discussing in unit 4 and unit 5. So for notes and all kind of things, so I'm not requesting you guys. If you wanted to join, wanted to see the notes and wanted to study from the notes which is written by me, you can join the Google Classroom. The Google Classroom code is written here. It is BPDRQ5Y और other डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ये स्लाइड्स आपको वहाँ मिल जाएंगी, या आपको वहाँ असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और कुछ MCQs भी मैं साथ ही साथ शेयर करता रहूँगा। मैं इसका